Myself Rama Chabra. I am Associate Professor in the Department of Education and Educational Management at this institute. And today we will be talking about a very important topic, which is time management. I think you all senior people teaching in various technical institutions may be very good time managers. But I think many times I hear from people also that they do not have enough time to do all their activities. So let us see कि हम सच में ही व्यस्त हैं या कहीं अस्त व्यस्त हैं. Are we able to manage our time well, or somewhere we are disorganized? So it's a very general topic. I think I would like to have more of interaction during the session rather than one-way communication from my side. So as I can see, ma'am, Anna Abby has raised her hand. Yes, ma'am, any issue? Or it is by mistake? ये पहले का ही raise किया हुआ है. Anyhow, so let us start with the topic. In this presentation, I would discuss about what exactly is time management and why do we need time management, and what difficulties we face while managing our time, and how we can manage our time effectively, and what are the benefits of time management. So before I go further, what exactly the time is? Time होता क्या है as a concept? क्योंकि हम बहुत बार सुनते हैं ना, लाइक कि टाइम अच्छा चल रहा है या टाइम बुरा चल रहा है. What is time? It is past, present, or future, or it may be it is yesterday, today, or tomorrow. It is hours, minutes, or seconds. What होता क्या है exactly? Even I do not know. ऐसे ही, just a thought. Just before the session, I was recapitulating what I'm going to talk about. So it was coming to my mind कि ये टाइम हम कहते किसको हैं? टाइम स्लो चल रहा है, टाइम फास्ट चल रहा है. टाइम ना तो स्लो चलता है, टाइम ना ही फास्ट चलता है. इट इज गोइंग एट इट्स कांस्टेंट स्पीड. बट ऑफ कोर्स यस, आई विल से कि स्लो और फास्ट का कॉन्सेप्ट वहां से आ सकता है कि व्हेन द थिंग्स आर द सिचुएशन इज गुड, वी आर हैप्पी, वी से टाइम इज quickly passing by. But when we are in distress, we say कि it is very difficult to spend the time कि time तो निकल नहीं रहा, it is going slow. Actually तो it is not that way. Clock तो अपनी speed से ही चल रहा है ना, the change is constant speed से चल रहा है. अगर हम कहते हैं कि day night है, in that case we'll also say कि वो भी relative नहीं है, because planet के इस time पे day है, हो सकता है on the other side of the planet it is night. Then what exactly is the time जिसको हमने मैनेज करना है? Continuous process basically or involve so many things at the particular moment. Yeah, to some extent true. To be happened. Even I do not have the exact definition of time with me. So anybody from the online participants also? Yes, ma'am. What exactly the time is? Okay, the time is related to our family, friends, age, career, success, etc., etc. Ma'am, I think time is a moment. Time is and it's just a moment, and it depends upon us how we are making the best utilization of that particular moment. वो इसलिए मैंने मोमेंट कहा क्योंकि जो टाइम है वो वापस नहीं आएगा, तो उसको हम बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, that makes an effect. So for me, it's a moment, it is an opportunity. Okay. Yes, ma'am, true. Anybody else would like to supplement what time is? Yes, to some extent, I think very well said कि time can be defined as an ongoing continued sequence of existence and events that occurs in an apparently irreversible succession, because when the time passes by, it does not come back. Even I think the half an hour what we will spend at present, it will become
past just after half an hour, and the other coming half an hour will be the future for all of us. So it is the irreversible succession from the past through the present into the future. So in the nutshell, I will say time is the present time which we have before us. Past है वो चला गया, present हमें पता नहीं है, एक पल नहीं पता कि मुझे I am going to live the next moment. It is the present time which is available with me. So exactly the time is an opportunity given by God to us to do something in life. So we have to be very cautious about how do we spend our time. Though everybody realizes कि time जो है हमारे पास बहुत limited है, we know the value of time, but even then, अभी हम next slide में बात करेंगे, how much time do we waste every day? अभी भी, sorry to say, in India, in our country, we do not have much consciousness about the time. हम वक्त की कदर को बिल्कुल नहीं जानते हैं, इतना valuable होते हैं. Utilization of time. Sorry? Utilization of time. Utilization of time. Yeah, ma'am. This is what I felt. Ki it's an opportunity, na? So we need to decide ki, how to make that opportunity into a fruitful, Yes. outcome. But on the other side, it is also true. See, time is absolutely impartial to all of us. Everybody, I think God has given 24 hours equal to everyone. But how is that some people achieve more in those 24 hours than the others? See, I agree, in addition to your potential or capability, I think on the other side, the other person is going to achieve more. Maybe he or she, it is not that he or she has less to do, but maybe he or she is utilizing the time properly to achieve more in those 24 hours. Nobody has 23 hours, nobody has 25 hours. And आज के time पे, it is very important for all of us as a person and also to teach our students the importance of time. बहुत लगता था कि with the technology चीजें बहुत आसान हो जाएंगी and we will have more time to our access, but I think it has gone reverse. Rather the time, it has become more difficult for us to get time for our activities. So this I will maybe at the end. सबको पता है टाइम बिल्कुल फ्री मिला हुआ है. Nobody gives any amount, nobody pays any amount for this to get time. It is priceless, but even then, as I said, we waste a lot of time every day. You cannot own time, but you can use it only. You cannot store time as we store our wealth and use in future. We cannot store our time in any locker and use it for the later. You can't keep it, but you can spend it only. So once you have lost it, you cannot get it back. I think this is also true. It is like bow and arrow. कि तीर एक बार हाथ से चला गया, it does not come back. Same way, जो moment अभी बीत गया, it is not going to come back in my life. So that is the importance of the time. Another one thing about time is very important. You cannot recycle the wasted time. अगर आपने अभी 2 घंटे बिना किसी चीज के लगा दिए हैं, you will not be able to restore those 2 hours to your access. So always remember that time is not something you can recycle. So make sure that you use it to the fullest. But हम time को blame बहुत करते हैं. जब हम किसी काम को नहीं कर पाते हैं, we just blame the time कि हमें टाइम नहीं मिलता. हम अपनी हॉबीज को नहीं कर पाते. अगर मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे वेट लॉस करना है, मैं स्टार्ट करती हूँ या जैसे किस तरह से है, बट मैं उसको फुली जो है यूटिलाइज नहीं कर रहा या कर रही. सो ऑलवेज रिमेंबर इन लाइफ, टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग वी हैव. सिंपली फॉर कॉर्पोरेट्स अगर आप बात करेंगे, टाइम इज सिंपली मनी. एवरी मिनट लॉस्ट इज loss of money for them. So time is ultimately the most valuable resource, but then it is very limited resource also with us. It is totally perishable. Once gone, does not come back. As I said, you cannot store up for the use later.
So time and how we spend it in our life so must be managed very effectively. So this is the brief about time and what are the features of time. So when it comes to time management, what does it mean? How do you manage your time? कैसे टाइम को कंट्रोल करते हैं हम अपने? Whatever is urgent, that do it that first. Otherwise, simultaneously कई काम करेंगे तो we are not going to reach the destination or goal. Parallelly कर रहे हैं क्योंकि our mind is not focused. Okay. Focus as to the priority. तो I think फिर भी हमें output नजर आएगी. Can we manage time? मैं वही पूछना चाह रही हूँ. Can we manage time? Do we manage the time? Time cannot be Time को कैसे manage? Can you ask the clock to stop here? No. Time cannot be managed. It will run at its own speed. How we are managing the time? Can be managed. Too many liabilities are there, ma'am. Too many liabilities. Okay. Time cannot be managed, but events can be आप फोन रख managed. दीजिए. फोन से देख के नहीं, अब अपने आप बताइए. How do we manage our time? Okay. हाँ, because मैं generally don't encourage to use phone in the class. Activities organized करके we can manage that. Manage what? Time is same. Time is same. तो हम मैनेज किसको कर रहे हैं? What do we call it as time management? We manage our day-to-day life basically. We chalk out the priorities. Yes. And like at most time when I say that I don't वर्क को मैनेज कर रहे हैं, इवेंट्स को मैनेज कर रहे हैं. वर्क को मैनेज कर रहे हैं, हम टाइम को मैनेज नहीं कर रहे. वेरी ट्रू. टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली जो आपने कहा कि वी आर मैनेजिंग अवर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द क्लॉक, अकॉर्डिंग टू द time. So exactly, time management is using the time available to you effectively in order to get the task done. As you said, we set our priorities, we allocate the time to the different activities. Time management refers to managing time so that the right time is allocated to the right activity. वो उसमें उसको हम कितना सक्सेसफुली करते हैं, we will talk about that also. Because it is very important. कई बार क्या होता है कि एक काम है जो हमारा आधे घंटे में हो सकता है, but sometimes we spend 2 hours on that. तो उस तरह की प्लानिंग, उस तरह की प्रायोरिटी, किस काम को कितनी एक्टिविटी देना है. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मीटिंग्स में क्या होता है, we spend hours and hours together in the meetings and then we say the minutes are recorded. The same time कि हम right time जो है right activity को कितना करते हैं, कितना prioritize करके उसको use करते हैं, that is exactly the time management. So friends, you cannot manage the time, as you all said. You can only manage yourself according to the time. So time management is actually the self management. You have to manage your activities according to those 24 hours so that you can achieve more and more in that. So time management word is actually the self management. So erase that concept from your mind. It is the time management, it is the self management. So next I will come to why do we need time management. टाइम मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है हमें? अब वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल पीपल, वी आर मैनेज. अगर हम पूछें, सम लोग पीपल विल से yes we are managing time, everything is going well, but some will say not too well. Why do we need time management? की जरूरत ही क्यों है? चली तो रहा है, everything is going well or no? सबसे पहले ये बताइए ना कि everything is going well. Do you have any problem? या कुछ लोगों को लगता है कि that we do not have enough time to do all our activities. तभी वहीं से नीड है ना कि हमें जरूरत ही क्यों है उसको टाइम मैनेज करने की. Improve the work efficiency. To improve the work efficiency, yes. Or I think, ma'am, to minimize the wastage of resources. Sorry, ma'am. Because to minimize the wastage of resources. Because अगर हम time का सही इस्तेमाल करेंगे, तो whatever resources we have in our hand, we can make the best use of it. Okay. So if we will be, lethargic or lazy, so in that case, what may happen? We are not affecting only ourselves, but we may affect the people who are associated with us. So being a team leader, अगर कुछ task team को दिया हुआ और मैं ही अगर उसको delay करूंगी,
तो कहीं ना कहीं it will affect in totality. So I think somehow it will affect the available resources. Okay. Anybody else? Let me मैडम have हमारी response to more भगवत गीता people. में I think only 1 or 2 participants are interacting only. Yes, Hardik ji. हेलो मैडम, हमारी भगवत गीता में ये लिखा गया है कि कोई भी काम जो है वो उसके टाइम पे कर देना चाहिए। अगर कोई काम उसके टाइम पे नहीं होता है, अगर आप कुछ सालों बाद वो काम करते हैं तो उसका वैल्यू जो पहले होता है वो नहीं होता है। Okay. वैल्यू विल बी आई थिंक हाँ, डेप्रिशिएटेड। वो तो आई थिंक वो जो वो श्लोक भी है हमारा वहीं से ही आता है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल Yes, में ma'am. कले होएगी फिर करेगा कब, यस है ना, यस कुछ ऐसा ही है। या यस मैम, यस दैट्स मैम। ट्रू सर, वेरी राइट। वही कहते हैं ना कि जो प्रेजेंट टाइम है हमारे पास वही अवेलेबल है, तो व्हाई वुड यू पोस्टपोन द थिंग, मीनिंग ही नहीं रह जाता। या अगर टाइम मैनेज करते हैं तो मैम वो फ्यूचर के लिए हाँ। टाइम से हो जाता है उसके लिए, रिजल्ट्स फॉर यस यस। और व्हाट एल्स? To achieve the desired goals within decided time period. सॉरी। Will be an organized person, you can say. या वी विल बी एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। उसके हाँ फिर देखेंगे क्या फायदे होते हैं व्हेन वी आर ऑर्गेनाइज्ड। In corporate world, Madam, time saving is the stay organized. Then टाइम we can सेविंग say, इज time management is stay organized. One of the thing. स्टे ऑन टाइम, Stay organized. स्टे ऑर्गेनाइज्ड। या ट्रू सर। Madam, to achieve the goals. यस हम अगर कोई भी मतलब हमें कंसिस्टेंसी चाहिए लाइफ में कि जैसा मैं आज अगर हेल्दी महसूस कर रहा हूँ, Yeah. कल भी हेल्दी होना है तो जो ड्यूरेशन है आज से कल का, यस जो भी मेरी एक्टिविटीज सेट ऑफ एक्टिविटीज वो होनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर ऐसा नहीं रहूंगा मैं या तो बीमार होऊंगा Yes. या मैं कुछ लूज True. करूंगा जो मुझे चाहिए इन हेल्दी मेहनत, तो वो स्ट्रेस से बचना है तो मुझे उस काम को टाइम पे करना टाइम पे कर लेना चाहिए, अदरवाइज आई थिंक हाँ बाकी हर एक की इवेंट्स एक्टिविटी यस आपका माइंड फ्री रहेगा, अदरवाइज यू विल एंड अप विद मेनी टास्क इन हैंड, तो उससे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। जो समझ में आता है कि हम टाइम से काम नहीं कर रहे, अदरवाइज स्ट्रेस नहीं कहीं भी नहीं कर। यस यस यस, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्योंकि जो कोई काम अगर आपने टाइम पे नहीं किया ना, एक तो वो उस पर्टिकुलर प्लेस पे आपका काम नहीं हुआ, द सेकंड जो काम है ना वो यहाँ पे भी नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं वो मेरे माइंड में भी जो है अटका हुआ है, तो इट इज क्रिएटिंग स्ट्रेस फॉर मी व्हेन आई हैव प्लान फॉर लेट अस से 10 एक्टिविटीज टू डू टुडे, और वो 10 ही बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट मैं वो सारी आज नहीं कर पाया किसी रीजन से या कुछ है, तो कहीं ना कहीं मैं रात को आई एम नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली, वो कहीं ना कहीं माइंड में चले कि कल सुबह उठ के मुझे सबसे पहले वो करना ही है। तो इसलिए जो टाइम मैनेजमेंट है, अगर हम उसको टाइम को मैनेज नहीं करेंगे, आई थिंक दैट पिक्चर सेज इटसेल्फ, क्लॉक को पीछे खींचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो जैसा मेरे एक दो फ्रेंड्स ने भी कहा, टू यूटिलाइज द अवेलेबल टाइम इन ऑप्टिमम मैनर टू अचीव वंस पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल गोल्स। तो हमें कहीं ना कहीं वो बैलेंस भी बना के चलना पड़ता है कि हमारी जो पर्सनल एक्टिविटीज भी और प्रोफेशनल एक्टिविटीज भी वी आर एबल टू अचीव, वो तभी हो पाएंगी इफ वी आर एबल टू मैनेज अवर टाइम वेल। अगर हम पर्सनल एक्टिविटीज को ज्यादा ध्यान देंगे तो प्रोफेशनली कहीं ना कहीं वी विल बी सफर्ड। इफ वी आर वर्कहोलिक ओनली गिविंग कंसंट्रेशन टू द प्रोफेशनल वर्क, तो कहीं ना कहीं आवर पर्सनल लाइफ विल बी डिस्टर्ब। सो वी हैव टू मेक द बैलेंस बिटवीन द टू टू फंक्शन इफेक्टिवली। आई थिंक वन ऑफ द पार्टिसिपेंट सेड कि हमारी जो है एफिशिएंसी विल बी मोर, वी विल बी एबल टू फंक्शन इफेक्टिवली इफ वी चॉक आउट द प्लान, वी सेट द प्रायोरिटीज, मुझे कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। बिकॉज उसमें भी हम दो तरह के एक्सट्रीम लोगों को ही देखते हैं। कुछ एक लोग तो हैं कि उनको तो हर टाइम पे एक वो हफड़ा दफड़ी रहता है कि बस मैं उसको कर लूँ, एक है कि उसको कीप ऑन पोस्टपोनिंग द थिंग्स। तो वो दोनों चीजें ही जो हैं वो ठीक नहीं रहती हैं। तो समवेयर कहीं ना कहीं वी शुड बी एबल टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द टू। ऑफ कोर्स यस, अगर हम प्लान करके करेंगे, आउटपुट विल बी मोर एट द एंड ऑफ द डे, टू हैव मोर कंट्रोल ओवर अवर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर हमने उसको प्लान किया हुआ है, सो हमारा जो अपने रूटीन की एक्टिविटीज पे पूरा कंट्रोल है कि हमने किस टाइम पे क्या काम करना है। ऑफ कोर्स यस, जैसा कि आपने कहा, हमारा जो है स्ट्रेस लेवल जो है उससे बहुत रिड्यूस होता है। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फ्री टाइम इज नेसेसरी। एट द एंड ऑफ द डे you need time to relax, to unwind yourself, to become more fresh for the next day, to have a good night's sleep. I think free time is also necessary. हाँ जी, 6 बजे ऑफिस से जा रहे हैं, अपने 10 साढ़े सब स्लीपिंग टाइम है, तो हमें 4 से 5 घंटे मिलते हैं, अगले दिन के 8 घंटे के तैयार होने के लिए। जरूरी फ्री टाइम भी फ्री टाइम is
so that you can spend on your own also. आपको अपने लिए भी टाइम चाहिए होता है, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम चाहिए होता है टू रिफ्रेश योरसेल्फ. अगर हम कहते हैं सबको इंपॉर्टेंस पता है कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, मुझे योगा करनी चाहिए, या मेरा कुछ और हॉबी भी हो सकती है, बट हम अपनी रूटीन की एक्टिविटीज में, इस भागदौड़ की जिंदगी में इतना ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके हैं, और सबसे ज्यादा जो मेजर कल्प्रिट हमारा जो टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से जो है वी आर नॉट एबल टू मैनेज अवर टाइम प्रॉपरली. तो जो वो हम फ्री टाइम की बात कर रहे हैं, टू रिफ्रेश योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट डे वर्क, दैट फ्री टाइम, वॉचिंग टीवी, spending time with your kids, reading books, or anything of your interest, I think free time is necessary. That is why we need to manage our time well. Manage self. हाँ, manage self. Yeah, it is actually the time management is the self management. So in the nutshell, we need time for everything in our life. So for good life work balance, I think take time to work. It is the price of success. Take time to think. It is the source of power. Take time to play. It is the source of youth. Take time to read. It is the source of wisdom. Take time to love. It is the privilege of gods. Take time to serve. It is the purpose of life. Take time to laugh. It is the music of soul. तो आपको हर चीज के लिए जो है टाइम चाहिए अपनी रूटीन एक्टिविटीज में. बट एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, लेट अस सी ऑन दैट. क्योंकि टाइम को मैनेज कैसे करते हैं, उससे पहले आई थिंक टू ट्रीट अ डिसीज वी हैव टू फर्स्ट डायग्नोज कि उसका कारण क्या है. सो व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू फेस इन योर टाइम मैनेजमेंट, देन वी विल कम ऑन दोज टिप्स कि हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, कि आप अपने टाइम को मैनेज करने के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है फेस करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई योर टाइम वेस्टर्स. फर्स्ट यू हैव टू सी वेयर योर टाइम गोज. मैं अपना टाइम कहाँ पे वेस्ट कर रहा हूँ. आई जस्ट गिव यू टू प्रोक्रेस्टिनेशन, आई विल कम टू दैट, एंड द पुअर प्लानिंग. सो फर्स्ट जो है आपका आइडेंटिफाई योर time wasters. So let us do a small exercise. I give you 5 minutes. Just write down. देखना, there will be a very long list will be coming from the participants कि हमारे time wasters क्या क्या हैं. I just give you 5 minutes. Come back to you. I just note down and then we will discuss. चीटिंग नहीं करनी. हाँ, सबके टाइम वेस्टर्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं. इसको थोड़ा सा शॉर्ट करती हूँ, मेरे को ना ये दिख नहीं रहा. Okay, people have started writing. Okay.
Okay, somebody said Mumbai travel takes 4 hours a day to travel. Yeah, ma'am, true. Yeah. Yeah, when if you are living far away from your office, I think traveling time takes a lot of your time, but then there is no choice. You will have to manage your time according to that. When you know that you have to reach your office, 4 hours या मेरे उसमें लग जाते हैं, so बाकी का जो अवेलेबल टाइम, वही बाद में आती है कि जो अवेलेबल टाइम है उसको हमने प्रॉपर्ली कैसे यूटिलाइज करना है. Yeah, 1/3 of, please remember, 1/3 of life I think we spend on sleeping. 23 hours में से 8 hours जो हमारे sleeping में जाते हैं. Yeah, yes. या किसी ने कुछ एनालिसिस भी किया हुआ था, एक डे का ही किया हुआ था 24 आवर्स का. राइट नाउ आई डू नॉट हैव इट विद मी, जहाँ पे कि हम अपना स्पेंड करते हैं टाइम इन अवर रूटीन एक्टिविटीज, मे बी ब्रशिंग योर टीथ, गोइंग टू वॉशरूम, इतने आवर्स लगते हैं, उतने आवर्स. उसके बावजूद भी आई थिंक 24 में से देयर वर आई थिंक 4 or 5 hours लेफ्ट विद द पर्सन टू डू मोर एक्टिविटीज अदर देन द रूटीन. जैसे आपने कहा 1/3 8 hours हमारे स्लीपिंग में है, 8 hours ऑफिस में भी हैं. 8 and 8 16 तो यहीं चले जाते हैं. उसके बाद 8 hours ही बचते हैं हमारे पास. उसमें बच्चों को देखना, घर की रूटीन एक्टिविटीज, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज टू डू. 8 hours की स्लीप सही हो गई है तो बाकी 16 घंटे आप किसी तरीके, लेकिन वो 8 hours अगर गड़बड़ जाते हैं तो फिर वो 16 के कम हो जाते हैं. देखो ये तो पर्सन टू पर्सन ट्रू है ही है. फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स को ही ले लीजिए. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मान लो 8 hours हमारे पास इंस्टीट्यूट में हैं. कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जो एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छे हैं, दे पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स आल्सो, दे पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटीज आल्सो, या कोई आप और भी काम उनको दे दो वॉलंटरली वो भी ले लेते हैं. और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका तो असाइनमेंट्स ही पूरी नहीं होती. तो कहीं ना कहीं हमारे टाइम को मैनेज करने में भी प्रॉब्लम है. जैसा कि मैंने कहा वो कैपेबिलिटी वाला एक पार्ट है अलग से. कुछ पीपल आर फास्ट, सम पीपल आर स्लो. या मैं वो मैसेज वाला ओपन कर लेती हूँ. लेट्स जस्ट वेट. मतलब बड़े इंटरेस्टिंग आंसर्स आ रहे हैं. Okay. Mumbai travel, that itself leaves no room for time management. Think about the past. Very true, ma'am. Thinking about the past. I think ये भी बहुत अच्छा लिखा किसी ने, thinking about the past. I think वो जो हम कई बार अपने पुराने, और ये भी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि पुराने बिटर एक्सपीरियंसेस को ही हम बहुत ज्यादा सोचते हैं और उसमें फिर घंटों वेस्ट कर देते हैं. Even thinking about the past and also worrying about the future also, I will say. कि फ्यूचर में क्या है, उसमें हम कई बार ऐसे एनग्रॉस हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि 1 or 2 hours हम फालतू की चीजों पे चले गए जिसके ऊपर कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. पास्ट इज गॉन, जो होना था हो गया, वी हैव नो कंट्रोल. फ्यूचर के बारे में वरी कर रहे हैं, वी हैव ऑफ कोर्स यस वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर फ्यूचर, वी कैन प्लान समथिंग फॉर फ्यूचर, बट देन वरिंग टू मच अबाउट दैट, आई थिंक इट इज जस्ट द वेस्टेज ऑफ टाइम. एक उसने क्या लिखा, टाइम वेस्टेज बेसिकली रिलेटेड टू योर थॉट प्रोसेस, डिस्टर्ब द होल डे. नो या प्लीज. बिल्कुल अलग आ रहा है माइंड में ना काफी टाइम से. हाँ बताओ. जैसे अगर हम कुछ भी चीज देखते हैं अपने आसपास एनवायरनमेंट में, वो सब ना ह्यूमन बॉडी के लिए की जा रही है. फॉर एग्जांपल एवरीथिंग, यूजिंग लैपटॉप, यूजिंग दिस स्क्रीन, सिटिंग ऑन द चेयर, एवरीथिंग मैम, गाड़ियां, रोड, एवरीथिंग. हाँ, ह्यूमन बॉडी के लिए सब कुछ नेसेसिटी है बेसिकली. तो जब हम बात करते हैं स्लीपिंग की, जब बात करते हैं ठीक है के साथ, जस्ट वेट मैम, डॉक्टर अर्चना आई विल कम टू यू. हाँ जी मैम, तो सारी चीजें ना हम वो करते हैं कि इसको टाइम वेस्टेज में गिनने शुरू कर देते हैं. तो मैम अब बात आती है कि मैम ये टाइम वेस्टेज क्यों कहा जाए इसको. अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो वी आर ऑब्जर्विंग लॉट ऑफ थिंग्स, तो वी कैन यूटिलाइज इट फॉर, मतलब किसी भी नॉलेज के लिए लगा दो आप. अगर आप बात कर रहे हो बच्चों के साथ पेन लिखा है, बच्चों के साथ नहीं, वो बच्चों का जो टाइम है वो दोबारा नहीं आता. अच्छा, किसने लिखा कि बच्चों के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं? लिखे भी कई. अच्छा, मैंने वो नहीं पढ़ा, ये तो नहीं आया. नो ओनली द ट्रैफिक टाइम इज देयर. किसी ने जैसे लिखा, नो आई वाज कमिंग टू दैट. जिसने किसी ने लिखा था ना कि मुंबई में ट्रैवल टाइम में इतना सारा होता है तो टाइम नहीं बचता. आई थिंक इट इज नॉट. हाँ, वो तो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर जॉब, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर रूटीन एक्टिविटी दैट यू हैव टू रीच योर ऑफिस. बट ऑफ कोर्स यस यू कैन यूज दोज 1 hour or 2 hours of your traveling in some other activity. मैम सोच रहे थे कि मुझे ना यहाँ से कुरुक्षेत्र से मोरनी जाना पड़ता है,
it takes lot of time to enjoy करो। नहीं बट आपको क्यों लगा मैं नहीं, सोच रही हूँ बात कर रहे थे, मैं अपनी बात करने लगा, मैंने एक ही वर्ड लिखा था, मैं वॉचिंग, मैंने सिर्फ एक ही वर्ड लिखा था, वॉचिंग फोन, कई बार ना जैसे उसमें लगता है। Yes. हाँ मेरे भी यही But बात लेकिन है वो मेजर सोचने- टाइम वेस्ट या ट्रू मैम, आई थिंक जो यहाँ के मैसेजेस से भी मैं देख रही हूँ, या आई एम इंटरेक्टिंग विद द पार्टिसिपेंट्स हियर ऑल्सो। आई थिंक आज के टाइम में जो मेजर टाइम वेस्टर है इज द culprit is the mobile phone, which is I think in the hand of everybody just now also. It is in the pocket, though it is no मैं ये नहीं कहती, it is useful also, it is good to share your inspirational thoughts or keeping in touch with each other, but to what extent I am using it, that is the concern. I only think I will spend 5 minutes to see my messages, but then I spend 1 hour or in this just because popping up of those messages which are watching social media, YouTube, checking your mails after every 15 minutes. कल्प्रिट फोन थोड़े ना, कल्प्रिट तो हम हैं, हमारे माइंड है। Okay. मैंने अभी लास्ट ईयर This is wrong, कि कल्प्रिट नहीं। फोन नहीं है। नहीं कल्प्रिट तो पहले बहुत कुछ होता था, और भी बहुत कुछ होता था, ये फोन की बात नहीं है। एक्सेसिबिलिटी इतनी आसान है हाँ। कि हम उसको अवॉइड करने लग जाते हैं। मैं कुछ कहना चाह रहा था। हम उसको मिसयूज कर रहे हैं। हाँ मैडम, we are the culprit, not the phone. हाँ, कल्प्रिट वो मीडिया है जिसको हम कल्प्रिट कह रहे हैं, जो मोबाइल फोन है, वो टेक्नोलॉजी है। अभी आप हाँ बोलो। Yes, please. जो लोग इस चीज को बना रहे हैं, they are earning. Exactly. उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज है ये। We are the culprit, not this phone. ये तो फ्री वाइट है जो हम use वो कर रहे ये हैं। लाखों रुपए का- उनके लिए तो बड़ी चीज है, बट स्पॉइल कौन हो रहा है उसमें से? हेल्थ किसकी स्पॉइल हो रही है उसमें? हम ही कह रहे हैं ना, वही तभी तो हम अपना टाइम वेस्टर को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं ना। अब देखो नहीं, जैसे- like हाँ बताओ। जैसे हमारी नहीं, आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ डिस्कशन। यस प्लीज। जब हमारी क्लासेस लग रही हैं, सपोज करो हमारा बच्चा अभी क्लास एंड कर रहा है और तू अभी भी फोन देख रहा है, और मैम मैं तो अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो वो हमारे ऊपर है बेसिकली। ये तो एक रिसोर्स है कि हम अपनी नॉलेज को कहाँ यूज करें, कहाँ इसको हम और बढ़ाएं। अब जब हम रील देखते हैं, आप जैसे बात कर रहे थे, आप अच्छी रील देख लो, इसमें क्या है? अच्छी रील नहीं, इट इज बेसिकली अ डिस्ट्रैक्शन। लाइक मेरे पास 3 ऑप्शन है कि मैंने सुबह पेपर जल्दी स्क्रीन करा, मैं पढ़ नहीं सकती, मेरा शेड्यूल नहीं अलाउ करता कि मुझे 1 घंटा लग रहा है ऑफिस जाने को, मुझे पता है। तो मैंने वो मार्क कर लिया कि मेरे को शाम को तसल्ली से बैठ के पढ़ना। देन आई हैव स्टार्टेड अ बुक आल्सो। फिर मुझे लगता है चल 5 मिनट, एंड नाउ व्हेन दिस 5 मिनट बिकम्स 50 मिनट्स, आई मीन दैट इज द प्रॉब्लम। दैट्स द प्रॉब्लम। एंड थिंक ऑफ दोस यंग माइंड्स जिनको कितनी डिस्ट्रैक्शन है। वो उनका ल्यूक्रेटिव ऑफर्स होते हैं जो हाँ, एकदम अट्रैक्ट वो 5 के 50 मिनट कम हो जाते हैं। ये पता ही नहीं चलता। शेयरिंग विद मी एवरी डे। वी स्टार्ट आवर डे विद द फोन, वी एंड आवर डे विद द फोन, और पूरा दिन हम फोन के ऊपर। आप ये बात करते हैं कि हम 4 people sitting in a room, 4 family members, all busy with their phones, not talking to each other, going away from the families. टेक्नोलॉजी के साथ we are connected to the world. मैंने कैसे किया मैं बता रहा हूँ। हाँ, देखो अगर हम एडल्ट्स की ये बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल लोगों की ये बात कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं 5 मिनट के 50 मिनट लगा रहे हैं, थिंक ऑफ दो स्टूडेंट्स, यंग माइंड्स। हाई लेवल पे चलो। तो मैम जब आपने ये बात टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट ज्यादा सेल्फ मैनेजमेंट ही सीख रहे हैं हम इसके, हाउ वी हैव टू मैनेज अवर टाइम। तो उसके लिए मैं पहले ये आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि वो डिसीज का रूट कॉज कहाँ है, बीमारी कहाँ पे है, मेरा यूजिंग ऑफ दैट फोन। my router now. Yeah, now I have tried to fix a time. I'll switch off the Wi-Fi. मेरे पेरेंट्स को जरूरत नहीं है, वो मैं ही चला के रखती हूँ। तो I just shut it down. डेटा पैक नहीं चलाना, राउटर बंद है। I easily study my book or my paper जो मैंने सर आप खुद ही देख लीजिए, आप 3-4 मिनट के बाद अगर आप अपना फोन नहीं उठाते हैं, हम कैसे रेस्टलेस हो जाते हैं कि फटाक से पहले हम अपने मैसेजेस देखें। पर्सन टू पर्सन, बट मेरा कहने का था कि मेजॉरिटी जो है ना, मेरे को लगता है 90 क्या मोर देन 90% जो है ना, वो उसी कैटेगरी में आते हैं। हो सकते हैं 5-10% हो, आई एम इन दोज 5-10% कि मैं बहुत फोन को यूज करना पसंद नहीं करती हूँ, बट मोर देन 90% जो लोग हैं ना, वो इसी कैटेगरी में। आप स्टूडेंट्स का तो आप सोच के ही देख लीजिएगा। यस, हाँ जी। जो फायदा ये है कि अगर ये 10 मिनट का सेशन ऐसे चलता है जिसमें मान लीजिए 1 भी होता है किसी भी कारण से, मैं ये कह रहा हूं आपका कोई भी,
तो शायद हो सकता है कोई फोन उठा, लेकिन अभी इतना इंटरेक्टिव हुआ है कि ना वो 4-5 मिनट जो आप कह रहे हो वो लोगों ने उठाया, तो ये बहुत जरूरी है कि इंटरेक्शन, सोशलाइजिंग, यस, फिजिकल जो बैठ के बात देखो अब करते यही बात मैं कल परसों मैंने ऑब्जर्व की, मैं ना बाय बस गया था, हाँ जी, तो बाय बस में गया था यहाँ से ओके, पंचकुला, हाँ, तो मैंने ये देखा कि सब लोग ना फोन अपना यूज कर रहे हैं। फिर मुझे पुराना टाइम भी याद आया कि मैं पहले बस में कई बार जाता था, तब लोग आपस में बात कर रहे थे, तो लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा कि जो नई जनरेशन है, ये यूथ है, वेयर वी आर लीडिंग but टू। मुझे लग रहा है वो उनके लिए ठीक है। अगर मान लो मैं बीइंग ए मेल और वो फीमेल कोई बात कर रहे हैं, किस नजर से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रही है, कैसे, कितनी सारी दिक्कतें आ जाती हैं, वो कहीं ना कहीं पर उनके लिए ठीक भी लगा। मुझे पहले नहीं लग रहा था कि बड़े लोग तो आपस में बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई लड़की जैसे ट्रैवल कर रही है और कोई जैसे जेंट्स बात करने की कोशिश कर रहा है, उससे किस तरीके का जेंट्स है, क्या है क्या नहीं है, उनके पे क्या बात होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, वो उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं है। तो इसलिए वो अपने आप को उसमें अपना इन्वॉल्व कर लेते हैं फोन के अंदर, ताकि वो आसपास के एनवायरनमेंट को देख ही ना पाए, क्योंकि उन्होंने एक हैबिट बनाई हुई है कि मुझे 5 to 5:30 या 6 तक मुझे पहुंचना है बाय बस, और मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, आई विल यूज माय फोन, और मैं बाकी लोगों से बची रहूंगी या बचा रहूंगा, ये होता है। बट ये यूजिंग द फोन वाइल जब हम कोई गाड़ी में चल रहे होते हैं या चढ़ रहे होते हैं, तो ये कई एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। Like now I share my own personal experience. हाँ जी मैम। Like I was traveling back from my hostel to my place, and it was like peak fog in December या January का first week. तो ISBT से मैंने बस लिया लोकल घर तक जाने के लिए, it's around 25 years old thing. So one of the gentlemen of my father's age, so he asked me where you are going, and I was like, why should I tell him? Should I tell him? Should I not tell him? Why is he asking? Then he said, he read the discomfort on my face. He said, I'm asking कि in case you are left, everybody disembarks, you should not travel alone, because the drivers, conductors, they're not good people, and you should get down with the last passenger, whatever stop it is. Then I had a sigh of relief. Okay, he's educating me. But luckily, like I wasn't the last passenger, there were many more, so I could comfortably go to my place, my destination. And once it happened, I was traveling to Ambala as a routine. So bus got brought down, but I had a habit, like what sir is saying, कि कुछ भी अपना इसमें play करके earpods लगा लिया, and I'm listening, and I'm not even paying attention कि बस To anyone, हो गई yeah. है, सारे passengers हो रहे हैं। See, And कहने conductor का was surprised कि और कहने का पर्पस ये है, कल्प्रिट हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट आई हैव टू यूज इट, बट हमने इसको जो ये टेक्नोलॉजी या कोई चीज बनी है वो हमारे को कंट्रोल करनी चाहिए थी, बट इट हैज बिकम रिवर्स, नाउ द फोन इज कंट्रोलिंग अस। तो वो कहने का पर्पस है कि टू व्हाट एक्सटेंट आई हैव टू यूज। हम ये नहीं कह रहे ये गलत है, बल्कि आज के टाइम पे इसके बिना काम भी नहीं चलता। यू हैव टू स्टे इन टच विद एवरीवन, और ये फोन की जरूरत भी बहुत है, बट कहीं ना कहीं हमने इसको हम इसके सर्वेंट बन गए हैं रादर देन कि हमें इसको कंट्रोल करना था। बल्कि आई एम मतलब सरप्राइज टू सी कि अब हमें प्रोग्राम्स में अपना टेक्नोलॉजी डिटॉक्स के सेशंस रखने पड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी यूज करके टेक्नोलॉजी अब हमने डिटॉक्स भी करने के लिए करना पड़ रहा है, बिकॉज आई कैन सी, यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व योर किड्स, योर स्टूडेंट्स कि वो कितना फोन यूज करते हैं। रात को भी लेके 2 बजे तक देखो बच्चे फोन लेके ही बैठे हुए होते हैं। It's only the not time wastage, it is only spoiling the health of the person also. That is for the more screen time. छोटे छोटे बच्चों को स्पेक्स लगी हुई हैं, so to that extent I think we are using this. व्हाट्सएप भी एक बार के लिए ऑफिशियल सबमिट कर दिया था। Yes. अभी मैं जो कनेक्टेड व्हाट्सएप अपनी फैमिली से, बस ताकि उनको कोई वो मैसेज देखो नहीं अलग है अपना अपना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको एक दूसरे से इंफॉर्मेशन जल्दी शेयर हो जाती है, यू आर इन टच विद ईच एंड एवरी पर्सन ऑल द टाइम। प्लस ऑफ कोर्स यस, अपनी नॉलेज के लिए भी हमें बहुत सारी चीजें जो हैं उससे मिलती हैं, और सोशल मीडिया तो आज बहुत बड़ा टूल है टू सेल योरसेल्फ आल्सो। तो वो चीजें सारी बहुत जरूरी हैं, बट हम उसको किस एक्सटेंट तक यूज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से टाइम वेस्टर्स हैं? एक तो हमारा फोन या लैपटॉप है कि हम इसके ऊपर बहुत सारा टाइम लगा रहे हैं। व्हाट एल्स? हाँ जी मैडम, फोन्स, मोबाइल फोन्स आर देयर, you people also. Yes, Aditi ji, please. Apart from that, a lot of informal communication at the workplace. Lot of informal communication at the workplace. Yes, it does come under building public lot of gossiping at the workplace, I will say. Yeah, but it works both ways. Yes, unnecessarily gossiping हो जाती है, उससे टाइम बहुत वेस्ट होता है। और ऑफिस में तो बहुत सारी चीजें हैं, मीटिंग्स का जैसे एक बोला मैंने,
unnecessarily जो हम ऑफिशियल मीटिंग्स करते हैं, a and 5-minute sometimes the time is conversation. wasted when the instructions are not clear. For Yes. example, आपको एक पेपर दे दिया जाता है by the boss and they simply write please discuss and that paper comes to you. आपको वो पता ही नहीं है कि मुझे कब डिस्कस करना है या उसके ऊपर कुछ मैंने पहले से प्रिपेयर करके जाना है. आई थिंक लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड देयर. आपको लगता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 1 या 2 दिन के बाद अगर बॉस के पास जाते हैं, he said you are coming now and चलो ओके what preparation you have done? Sir, it was not written there कि I have to prepare something. अगर हम इंस्ट्रक्शंस को क्लियर कर देंगे, प्लीज डिस्कस विद द let us say a brief report on such and such points and we will discuss it, let us say tomorrow at 10 o'clock, then I think you will be able to manage your time well. Sometimes a 5-minute conversation can easily extend up to 15 minutes, 20 minutes. So unfiltered communication can also be one of the reasons. Yes, ma'am, very true. What else? At times, being a good listener at workplace can also be a source of major time waster, because everybody would keep on pouring their tea, and you end up pacifying and patching up all other people, but especially at the नहीं, but वो जो टाइम जो आप वेस्टेज कह रहे हो वो आपके लिए गलत हो सकता है वेस्टेज, पर सामने वाले की क्या नहीं वो है ना सर, स्पेशली व्हेन यू आर ऑफिस शेटिंग और यू आर इन चार्ज. चलिए, I think let's come to now manage how we can. अगर आपको अपने टाइम को, if you have to manage it well, stop. Next we'll come to procrastination and poor planning also. The first point को हमने कुछ wasters को identify किया. So if you want to have more time, sir, stop these biggest time wasters. Number 1 is jumping from task to task. एक काम पूरा नहीं हुआ, दूसरे काम को शुरू कर लेते हैं, दूसरा भी बीच में छोड़ा, तीसरे काम को शुरू कर लेते हैं. Please do not do that. Have a focused mind. Take one work, complete it, then take the other work. So jumping from task to task में भी we waste a lot of time, और at the end of the day हम देखते हैं कि वो चारों के चारों काम ही complete नहीं हुए हैं. Of course, yes, इसके बारे में हमने काफी डिस्कस कर लिया है. Obsession with the social media. Be careful while using the social media, how much time you have to give to this technology use. I think that also you have to manage. Stop checking email after every 15 minutes. कुछ टाइम स्लॉट बना लीजिए अपने मेल्स को चेक करने के लिए. हर मेल भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर मेल को भी एवरी टाइम हमें रिप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, बट जस्ट बाय चेकिंग दोज मेल्स, हर्ष कोई नहीं है 15 मिनट्स में आप चेक करिएगा, बट वो चेक करते करते आपके सामने कुछ और पॉपअप होता है ना, तो वो आपकी जो है अटेंशन को डाइवर्ट कर देता है. मेल तो आप 5 मिनट्स के लिए चेक करेंगे, बट हो सकता है आप 15 मिनट्स जो है कुछ और उसको देखने में लग जाते हैं. आई थिंक फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, लेट अस से शॉपिंग की बात करते हैं. पहले आई थिंक जब ये हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन नहीं होता था, शायद मैं 1 आवर के लिए जाती थी और अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके आ जाती थी. अभी क्या होता है, अगर हमें ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑप्शंस देखने में शायद मैं पूरा दिन में सुबह से लेकर शाम तक उसको डिसाइड नहीं कर पाती हूँ. बस वो अपने बास्केट को फुल करते रहते हैं, फिर हम रात को आराम से बैठ के उसमें 1 या 2 घंटे लगाएंगे, फिर भी उसमें से शायद कुछ फाइनल कर पाएंगे. सो दीज थिंग्स आई थिंक, मैं सबसे पहले बोला कि वी डू नॉट रियलाइज कि हम अपना डेली का कितना टाइम जो है अननेसेसरी एक्टिविटीज के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं. डिपेंड हमारे पे ही करता है, बट कल्प्रिट भी हम ही हैं कि हम वो उस पर रियलाइज नहीं कर पाते. ये रियलाइजेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है, जब मैंने तो पहले कहा वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, ऐसी बात नहीं है. हम कहेंगे इतने टाइम से हमारी लाइफ चल रही है, हमने कहीं ना कहीं टाइम को मैनेज किया है, अपने बच्चों की स्टडीज को भी देखा है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी देखा है, अपनी पर्सनल लाइफ को भी देखा है, बट आज के टाइम पे जो सिनेरियो चल रहा है फॉर आवर सेल्फ, फॉर आवर किड्स, फॉर आवर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट हैज चेंज्ड नाउ. अनऑर्गेनाइज्ड मीटिंग्स, आई थिंक समबडी हैज सेड कि वो अनऑर्गेनाइज्ड मीटिंग्स जो आ जाती हैं जिसमें हमारा बहुत ही टाइम जो है वेस्ट हो जाता है. आपने कुछ और चीज़ प्लान की होती है, ऑल ऑफ ए सडन आपको कोई मेल आ जाती है और आपने कुछ प्लान किया होता है. लेटर से हमने कोई अपना रिसर्च पेपर लिखने के लिए प्लान किया है, और मैंने अपना कोई लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए प्लान किया है, और कहीं से कॉल आ जाती है, तो और जाके पता लगता है कि उस मीटिंग्स में मेरा उतना रोल नहीं था, बट मेरा टाइम जो है उसमें वेस्ट हो जाता है. बट बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, बट उन सब चीजों को देखते हुए भी मुझे अपने आप को कैसे मैनेज करना है.
गोइंग डाउन द रैबिट होल ऑफ कंटेंट से वही मतलब था कि हम देखने तो कुछ और बैठे हैं, कुछ और कंटेंट जो है उसके ऊपर पॉपअप हुआ और उसको हमने देखना शुरू कर दिया. Another important is inability to say no. Don't try to be always be yes man. अगर आपके पास ऑलरेडी 2-3 वर्क्स इन हैंड हैं, अगर बॉस ने या किसी और कुलीग ने कोई और काम करने के लिए बोला है, प्लीज ट्राई टू से नो ऑल्सो, और एटलीस्ट आस्क द बॉस की प्रायोरिटी फिर कौन सी है पहले उन 4 कामों में से. अदरवाइज अननेसेसरली यू विल बी ओवरलोडिंग योरसेल्फ, स्ट्रेसिंग योरसेल्फ, और उसमें से आप किसी भी एक्टिविटी को ठीक से अचीव नहीं कर पाएंगे. वॉचिंग टीवी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो रिलैक्स करने के लिए जब हम बात करते हैं, बट अगेन द लिमिट ऑफ द टाइम. यस, इंटरेस्ट इतना हो जाता है, यस, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू वॉच दैट मिस्ट्री वाले या कुछ इस तरह के चैनल्स देखने बैठते हैं, तो एक क्यूरियोसिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है. सोचा तो मैंने यही था कि मैं 1 एपिसोड देखूंगा या देखूंगी, बट कहीं ना बार तो हो सकता है कि 4 या 3 करके ही पूरा ही हो जाता था. Then we will sleep at 2 o'clock and फिर मॉर्निंग में कैसे रिफ्रेश होके उठेंगे. तो कहीं ना कहीं अगर आपने अपने टाइम वेस्टर्स को रिड्यूस करना है, यू विल हैव टू सी कि मुझे इन चीजों पे कितना वो टाइम स्पेंड करना है. वेब सीरीज में टाइम जाता है ना. यस प्लीज. वेब सीरीज या सर, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल. आज नेटफ्लिक्स है, वो प्राइम टाइम, अमेजन, ये वो बहुत सारी चीजें हमारे पास, इतना ज्यादा मतलब कहते हैं ना ओशियन ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल कि उसमें हमारा जो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है. क्लटर एंड एक्वायरिंग स्टफ यू डू नॉट नीड. ऑफिस में भी देख लीजिए, कुछ लोगों का मैंने देखा है पूरा टेबल ऐसे पेपर से और फाइल से भरा हुआ होता है कि आपको एक पेपर ढूंढने के लिए शायद आवर्स टुगेदर लग जाते हैं. वही वी आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड. हमें जो पेपर जरूरत भी नहीं है, चलो रख लेते हैं, शायद कभी जरूरत पड़ जाएगी. इवन घरों में भी ऐसे होता है, बहुत सारी चीजें हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि इतना संभाल के रख देते हैं कि वो मिल नहीं पाता है कि पेपर कहाँ पे है. हम वो उसका रीजन है ना, हम बहुत सारा क्लटर इकट्ठा कर लेते हैं, ऑफिसेज में भी, घर में भी. तो आई थिंक उसके लिए भी हमें विल हैव टू बी लिटिल कॉन्शियस कि हमें किस चीज को किस तरह से प्लान करना है. एक्टिंग विद इन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस, कंप्लीट डायरेक्शंस नहीं है, तो दैट आल्सो वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. स्टेइंग टाइट टू द कंप्यूटर, ऑलरेडी डिस्कस्ड. वरिंग, जो हम कर रहे थे, वरिंग अबाउट द पास्ट एंड वरिंग अबाउट द फ्यूचर. डे ड्रीमिंग में बैठे हुए घंटों लगा देते हैं और बाद में उसका कोई आउटपुट नहीं निकलता है. देन अगेन इज द परफेक्शनिज्म. आई ऑलवेज से, ठीक है परफेक्ट होना अच्छी बात है, बट डोंट ट्राई टू बी ओवर परफेक्शनिज्म. मैं भी कहूंगी एटलीस्ट यू स्टार्ट विद द थिंग. मे बी इन द फर्स्ट गो ये उतने लेवल का मेरा प्रोजेक्ट या उतने लेवल की रिपोर्ट नहीं बनेगी, बट एटलीस्ट 1 ड्राफ्ट विल बी रेडी, ताकि मैं उसको फिर फर्दर बाद में जो है इंप्रूव कर सकूंगा या कर सकूंगी. बट कुछ लोगों को होता है कि नो, मेरे को इसको फर्स्ट उसमें ही आई हैव टू गिव द परफेक्ट थिंग. तो वो परफेक्शन के उसमें भी जो है बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है. बट अगर आई विल से, अगर आपने फर्स्ट उसमें अपना जो प्रायोरिटी के हिसाब से जितना टाइम आपने सोचा, उसमें अगर आप एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं, आई थिंक जो नेक्स्ट टाइम उसको इंप्रूव करेंगे तो इट विल टेक लेस टाइम टू. सो आपने अगर अपने टाइम वेस्टर्स को रिड्यूस करना है तो आई थिंक ट्राई टू. सेकेंड हमारा था प्रोक्रेस्टिनेशन. यस यस प्लीज. करना क्या है वैसे? कब? नहीं ही इज राइट. या प्लीज मतलब उस टाइम में हम करना क्या चाहते हैं? वे कब क्या करना चाहते हैं? आई एम नॉट अंडरस्टूड योर क्वेश्चन. जो टाइम बचा रहे हैं मतलब कितना वो करके मतलब हम करेंगे उस टाइम में लाएंगे क्या, हम करना क्या चाह रहे हैं? एक बंदा वो जो हर वक्त मतलब टाइम डिवोट करके लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, सपोज करो. हाँ. एक वो बंदा जो अपने सेल्फ मेडिटेशन करता है, हाँ. आराम से पीसफुली बैठा है, गोइंग फॉर मतलब हिल्स ऑन, मतलब अपना आराम से, हाँ. तो टाइम कौन वेस्ट करे दोनों में से? नहीं, टाइम तो दोनों ही नहीं वेस्ट कर रहे. उसका गोल अपना लाइफ में जो है उसका अपना प्रायोरिटीज डिफरेंट. टाइम वेस्टर प्लस हमारे को क्या चाहिए है. यस, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है. हैविंग डिफरेंट प्रायोरिटीज. या हाँ, मेरी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में, मुझे क्या करना है.
गॉसिप्स विद अदर लीडर्स क्या करते हैं? लीडर्स क्या करते हैं? लीडर बात तो करते हैं सबसे। हाँ, उनके लिए सबसे बड़ा टाइम वो है मैनेजमेंट उनके लिए। बट ऐसा नहीं है कि अगर वो लीडर्स किसी से बात कर रहे हैं तो दे आर नॉट एबल टू अचीव देयर थिंग्स इन लाइफ। ऐसा तो नहीं वो सारा दिन सिर्फ एक दूसरे से बात ही कर रहे हैं। बात करके वो करते हैं व्हाट आप मेरे से बात करेंगे मैं उनकी तरफ, बट वो फिर अपने कंट्री को मैनेज भी तो कर रहे हैं। इफ समवन इज ऑपरेटिंग एन एप्लीकेशन ऑन YouTube और एनीथिंग एल्स, तो उसके लिए वो टाइम ठीक है। सी लीडर्स की जहां तक बात करते हैं, लेट अस से आवर प्राइम मिनिस्टर, ही आल्सो हैज 24 आवर्स विद हिम। कितनी एक्टिविटीज मैनेज कर रहे हैं वो। इफ आई से कि ही इज ओनली टॉकिंग टू द पीपल ओनली एंड ही इज नॉट मैनेज, वो तो कहते हैं 16 आवर्स काम करते हैं, वो तो पता नहीं 3 घंटे ही सोते हैं शायद लाइफ में। वो नहीं अपनी बात भी जब हम कर रहे थे ना सर, जब हमने नहीं वो हम शायद थोड़ा सा कहीं नहीं वो डाइवर्ट हो गए, उसको हम टाइम मैनेज से कैसे रिलेट कर रहे हैं या वो क्या करना है मुझे वैसे समझ नहीं आया। यू आर कंपेयरिंग वन योगी विद द वन बिजनेसमैन, तो वो तो ठीक है, वो अपने योगा और मेडिटेशन में अपने 24 आवर्स को कैसे लगाते हैं, और एक बिजनेसमैन है वो अपनी एक्टिविटीज को कैसे कर रहा है, दैट्स फाइन ओनली। बट ऐसा नहीं है, आप अगर 99% लोगों से बात करेंगे तो जो हम अपनी एक्टिविटीज को रूटीन में करना चाहते हैं, मैं तो आपसे सबसे पहले पूछा कि आपके स्टूडेंट्स ही हैं फॉर एग्जांपल, और ऐसा क्यों है कि 24 आवर्स हैं जैसे सबके पास। अगर मैं बिल गेट्स को कंपेयर करूं या एक पतंजलि के रामदेव जी को कंपेयर करूं या एक बिजनेसमैन को कंपेयर करूं, कुछ लोग इतना अचीव कर पा रहे हैं, बाकी के सब उतना अचीव नहीं कर रहे। या स्टूडेंट्स का जैसे एग्जांपल है, आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं बहुत एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ टाइम नहीं लगे रहते हैं, उस चीज की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे आपका स्टूडेंट जब आपको कल को कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे, दे विल आल्सो हैव टू डू मल्टीटास्किंग, बहुत सारे काम उनको करने पड़ेंगे, बट वो टाइम मैनेजमेंट हम उनको कहाँ सिखा रहे हैं, एट द इंस्टीट्यूट कहाँ सिखा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट। चलो लेट मी आस्क वन प्रैक्टिकल थिंग। यस सर, प्लीज आप कुछ कहना चाह रहे हैं? I'm not able to hear you properly, sir. Sorry. Please अपना माइक म्यूट कर लीजिए सर। I think offline ऑनलाइन में कहीं पर ऐसा हो जाता है, you are not able to connect with them, you are not able to connect with the person, but offline में हमारा रहता है कि we should be able to connect with you more rather. Yes please. जो लोग ऑनलाइन है ना वो सबसे जरूर हेल्दी तो यही है। चलिए नेक्स्ट सेकंड जो हमने कहा था टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम हमारी आती है इज दी प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मींस पोस्टपोनिंग द थिंग्स, पुटिंग ऑफ द टास्क। कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और फिर जब लास्ट डे पे उसकी इमरजेंसी होती है और उस दिन पे कुछ और हमारी प्लानिंग होती है, देन आई थिंक इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और ये हम प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा पोस्टपोन करते हैं हम चीजों को, उसकी अर्जेंसी को, उसकी प्रायोरिटी को समझना या वो करना, वो बहुत ठीक है। मेडिकल जैसे मान लो टाइम मैनेजमेंट का मैट्रिक्स भी है कि हमें वो देखना होता है कि हमारी कौन सी चीजें हमारे लिए अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अर्जेंट इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, लेट ऐसे कोई मेडिकल इमरजेंसी है, आप गिर गए, एकदम चोट लग गई, वो तो आप चाहे कुछ भी प्लान किया हुआ है, यू विल हैव टू अटेंड दैट एक्टिविटी फर्स्ट। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटल ले जाना जरूरी होता है। आपको लेटर से बच्चे को 1 बजे स्कूल से पिक करना है, आई थिंक दैट इज वेरी अर्जेंट एज वेल एज इम्पोर्टेंट। अगर आप नहीं जाएंगे तो यू विल बी लॉस्ट समवेयर। तो कुछ चीजें होती हैं जो बहुत अर्जेंट है। आज मेरा मीटिंग है, आज मुझे प्रेजेंटेशन देना है, आई थिंक आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं और कुछ लोगों पे ना वो चीज हावी बहुत होती है कि हर चीज उनके लिए ना इम्पोर्टेंट या अर्जेंट ही बनी रहती है। ऐसा नहीं होता, कुछ चीजें ऐसी होती हैं इम्पोर्टेंट हैं बट अर्जेंट नहीं है, जो सेकंड वाली हमारी कैटेगरी आती है। फॉर एग्जांपल लेट अस से कि फॉर योर डेंटल चेकअप एवरी 6 मंथ्स आई हैव टू गो टू दी, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। या फिजिकल आपकी वैसे ही अपनी बॉडी के लिए हेल्दी फूड खाना, एक्सरसाइज डेली करना इज इम्पोर्टेंट फॉर मी बट मे नॉट बी दैट अर्जेंट। बट हम उसको इतना अगर पोस्टपोन करते रहेंगे, वन डे इट विल बिकम एन इमरजेंसी।
तो उस दिन मैंने अपने लिए कुछ और प्लान किया हुआ था, ये कुछ और plan हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटीज को उस तरह से सेट करना चाहिए कि मैं उसको यूज नहीं कर लूँ। कभी कभी मान लो कोई बिल है, कोई फी पे करनी है, चलो अभी तो लास्ट डे है ना, 10th को है, कल कर लूंगा या परसों कर लूंगा, और जिस दिन 10th आ गई उस दिन वो बिल या स्कूल फी पे करनी इंपॉर्टेंट है, और उधर से ऑफिस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, देन थोड़ा स्ट्रेस अप हो जाता है, अनऑर्गेनाइज्ड और बिल्कुल एकदम आती है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी चीजों को उस तरह से प्लान करके चलना चाहिए सो दैट वी आर एबल टू। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीजन क्या है प्रोक्रेस्टिनेशन का? एक तो है हैबिचुअल, हैबिट हो जाती है, सम पीपल आर हैबिचुअल कर लेते हैं। एंड द अनदर थिंग, व्हाई डू वी प्रोक्रेस्टिनेट? समटाइम्स व्हेन दिस टास्क इज लिटिल डिफिकल्ट, हमारा उसको स्टार्ट करने को मन नहीं करता कि ये मुश्किल काम है, इसको बाद में देखते हैं, बाद में उसको हम पोस्टपोन करते रहते हैं, जिसमें मुझे डायरेक्शंस क्लियर नहीं है, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू, एक वो बहुत बड़ा रीजन। सर प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, इट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। सेन गोदन जी। यस मैम, बहुत आवाज आ रही है उनकी। यस मैम, yes ma'am, who is looking after from ETV center, please उनको माइक म्यूट कर दीजिए मैम फ्रॉम आवर साइड। Please remove him. संगोदन प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। Yes, madam. He is disturbing us. Please, Sangodan. हेलो, who is looking after from ETV center से कौन है? संगोदन जी प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए। सो सेकेंड प्रोक्रेस्टिनेशन का हम कर रहे थे व्हेन द टास्क इज लिटिल डिफिकल्ट, जब हमें ये नहीं पता लगता फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। उस प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम? आई थिंक अगेन हियर स्टार्टेड। मैंने अनम्यूट करके वहां पे छोड़ा हुआ होगा। संगोदन जी प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। Madam, please issue a memo on this. ईटीवी सेंटर से कर सकते हैं, जो टेक्निकल कोऑर्डिनेटर है। आप प्लीज ईटीवी से जो होस्ट है ना वो म्यूट कर सकते हैं। यस यस। हेलो, ईटीवी सेंटर से हु इज लुकिंग आफ्टर द टेक्निकल कोऑर्डिनेटर? सेंगोडन जी माइक बंद करिए आपका। हेलो सेंगोडन। Don't disturb our lecture. चलो आगे चलते हैं, हम इस प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं? जैसे हमने कहा कि टास्क इज लिटिल डिफिकल्ट, बाकी नहीं सुनेगा ना। उन्होंने देखो मैसेज में भी लिख दिया है, बट इज नॉट लुकिंग एट द मैसेज आल्सो। नहीं, चलिए हमारे पास और 10-15 मिनट है, लेट अस फिनिश ऑफ विद द सेशन जितना हमको सुनना है। हाँ, सेकंड में आपसे पूछ रही थी कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम, कि टास्क डिफिकल्ट है उसको कैसे हम इंटरेस्टिंग कैसे बन सकता है। आई थिंक प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए जैसे प्रो वर्ड लगा हुआ है ना, ट्राई टू बी प्रोएक्टिव। चाहे टास्क डिफिकल्ट है, मे बी आप उसको चाहे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करिएगा, और मे बी एटलीस्ट स्टार्ट विद द वर्क। आप ये सोच के कि प्रोजेक्ट तो लंबा है, बट एटलीस्ट मैं इसको आज लेट अस से 10 मिनट से स्टार्ट करती हूँ या करती हूँ। अगर जब आप उसको स्टार्ट करने बैठेंगे, 10 मिनट से वर्क करेंगे, हो सकता है कि जो चीजें है ना वो अपने आप से ही इन लाइन आने शुरू हो गए। आई थिंक दोस क्रिएटिव जूसेस, आई थिंक दे स्टार्ट बिल्डिंग अप इन योर बॉडी, कि आप उसको जब एक बार शुरू करते हैं और कहीं पर फिर ऐसा होता है कि चलो लेट मी टेक इट टू द एंड। तो जो आपने कहा ना कि स्टार्ट करने को मन नहीं करता है, बिगनिंग वाला है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन को रिमूव करने के लिए यू हैव टू बी प्रोएक्टिव फर्स्ट। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइम वेस्टर जो हमारा था प्रोक्रेस्टिनेशन था। तो ओवरकम करने के लिए आस्क योरसेल्फ व्हाई आई एम पोस्टपोनिंग इट। उसका रीजन, उसका रूट कॉज तो निकाले कि मैं उसको क्यों कर रही हूँ। इंटरेस्टिंग नहीं है या वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो जस्ट लीव इट देन। क्यों उसको माइंड में रखा हुआ है, क्यों उसको कर रहे हैं? बट ऑफ कोर्स यस, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है देन ब्रेक इट डाउन इन द स्मॉल पीसेज, जस्ट डू इट, बी प्रोएक्टिव। और अगर फिर भी लगता है कि आई एम नॉट एबल टू डू इट, गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स।
अदरवाइज जो मैंने कहा कि जो अनअटेंडेड वर्क है वो उस सिचुएशन में भी अनअटेंडेड है और यहाँ पे भी अनअटेंडेड रहेगा. It will create a lot of stress to you. The third was the poor planning. कई बार क्या होता है कि हम अपनी चीजों को, अपने डे को पूरे ठीक से प्लान नहीं करते. अपनी एक्टिविटीज को, वही आ गया सेम, प्रायोरिटाइज करना, किस एक्टिविटी को मुझे कितना टाइम देना है, देन ट्राई टू डू दैट एक्टिविटी इन दैट टाइम. अगर आपने सोचा है कि मैंने अब 1 घंटा अपना रिसर्च पेपर लिखना है, तो आपने फिर उस 1 घंटे में कुछ और नहीं अटेंड करना. मेक श्योर फोन को ऑफ करके ही रखिएगा, तभी वो चीजें हैं कर पाएंगे. अगर बीच में वो डिस्ट्रैक्शंस के साथ करेंगे तो वो काम कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा. हाँ, कई बार ये हो जाता है पुअर प्लानिंग कि हमने सोचा तो था कि 1 घंटे में हो जाएगा, बट वो जब काम करने बैठते हैं तो लगता है कि नहीं ये 1 घंटा नहीं, इसमें तो 2 घंटे चाहिए थे मुझे. तो कई बार वो पुअर प्लानिंग की वजह से भी जो है हमारा टाइम जो है इधर उधर हिल जाता है. तो उसको प्लान करना अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो इसमें तीनों चीजें हैं, 3 P's वाली बात ही है कि प्लान वेल, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, एंड देन बी प्रोएक्टिव ऑल्सो. मैंने एक्टिविटी के लिए शेड्यूल तो कर लिया, बट मैं प्रोएक्टिव है कि अगर मैंने उस पर एक्शन नहीं लिया तो वो कैसे कंप्लीट होगा. और उसको करने के लिए फिर अपनी चीजों को ना इजी बनाना. फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट अस से मैंने सोचा कि मैं कल से ½ एन आवर वॉक करना स्टार्ट करूंगी. फिर सुबह देखा नहीं बहुत ठंडा है, चलो आज रहने देती हूँ, ओके आई विल डू इट टुमारो. प्लानिंग फेल हो गई, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया हमने कि मैं अगले दिन करूंगा. लेकिन अगर मैंने ये सोचा कि नहीं मुझे ½ एन आवर वॉक करनी है, फिर लगा कि नहीं जूते कौन निकालेगा, ठंड है, जैकेट निकालनी पड़ेगी, ये वो है, उन चीजों को इजी करने के लिए ताकि आप प्रोएक्टिव बन सके. अपने लेटर से शूज जो है अपने बेड के पास, जैकेट बिल्कुल मेरी उसके पास पड़ी हुई है, देन थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करके एंड यू स्टार्ट. और जब आप एक वही बात आ गई ना कि जैसे ही आपने स्टार्ट किया ना, नेक्स्ट डे आपको अगेन यू विल बी प्रिपेयर्ड टू गो फॉर अ वॉक, एंड धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाती है. दिस इज हाउ वी हैव टू मैनेज अवर टाइम. आप उसको एक बार स्टार्ट करिएगा. उन चीजों को करने के लिए जो जो मुझे रिसोर्सेज चाहिए, उन रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके अपने पास रखिएगा, स्टार्ट करिएगा, एंड आई थिंक इट विल बिकम योर हैबिट. तो फिर आपको अपना टाइम मैनेज करना उतना मुश्किल नहीं लगेगा. तो अपने जो गोल्स हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको रियलिस्टिक बनाइएगा. अगर आपको लगता है कि मैं ½ एन आवर वॉक कर सकता हूँ तो ½ एन आवर का टारगेट रखिएगा. अगर लगता है नहीं मुझे 15 मिनट्स का टाइम है, मुझे 15 मिनट्स का करना है, तो आप ना स्मार्ट वाले गोल्स और स्मार्ट वाले ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जो अचीवेबल भी हों. मुझे लगा नहीं मुझे तो 10 किलो वेट 10 दिन में ही करना है, मैं तो 1 घंटा जिम जाना है, 1 घंटा वॉक करना है, और वो 1 घंटे वाली एनर्जी, 1 घंटे का टाइम मेरे पास नहीं है, तो लगता है चलो छोड़ो अब मैं करता ही नहीं हूँ. तो वो रियलिस्टिक गोल्स बनाइएगा, उसकी प्लानिंग प्रॉपर करिएगा, उसके रिसोर्सेज को मोबिलाइज करो, उसको स्पेसिफिक एक्टिविटी को मुझे टाइम कितना देना है, उसकी प्रायोरिटी एज पर देयर इंपॉर्टेंस जो हमने डिस्कस कर लिया है. और नंबर लास्ट में जो है डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. डोंट ट्राई टू ऑलवेज से कि मुझे जो आप मेरे से बेस्ट कोई काम नहीं कर सकता, मुझे ये सारा काम खुद ही करना है. डोंट डू दैट. कहीं ना कहीं इफ यू हैव अ टीम ऑफ पीपल विद यू, डेलीगेट दोज वर्क्स टू द अदर पीपल. आप ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे लोग हैं. Try to delegate your work so that you can use that extra hour to yourself. This is how you can manage your time effectively. Same again for effective time management. I think पहले हमने discuss किया है, you have to be organized in your life. Throw what all you don't need. Put only important documents in your folders. क्योंकि आज के कंप्यूटर के टाइम पे हम बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं करते चीज़ों को, बहुत चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं और वो फाइल ढूंढने में हमें घंटों लग जाते हैं, चाहे वो हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं होती हैं. तो अननेसेसरी जो है हमारा टाइम उसमें सर्चिंग में वेस्ट जाता है. बी फोकस्ड. डेवलप द हैबिट ऑफ यूजिंग योर प्लानर्स, ऑर्गेनाइजर्स. आपके टेबल टॉप कैलेंडर्स पे राइट डाउन ऑल योर एक्टिविटीज. सेट रिमाइंडर्स फॉर योर सेल्फ. डोंट मिस यूज टाइम. डोंट किल टाइम बाय गॉसिपिंग अराउंड. जो ऑफिस के टाइम पे हम बात कर रहे थे, जाते तो 10 मिनट के लिए हैं किसी के पास, बट वहां जाके कुछ और डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है, एंड वी स्पेंड आवर्स देयर. और कई बार पता ही नहीं चलता कि हाफ अ डे तो फालतू की चीजों में निकल गया है. दिस इज हाउ दी आई थिंक वी आर किलिंग अवर टाइम. और फिर एट द एंड ऑफ द डे पे ब्लेम करते हैं टाइम को कि हमें टाइम ही नहीं मिलता अपनी एक्टिविटीज के लिए. So if you manage your time well, you will see what advantages, what benefits you are going to accrue if you manage your time well. It makes an individual punctual and disciplined.
आप हर रोज के लिए अपनी एक रूटीन सेट करते हैं, यू विल बी मोर पंक्चुअल, मोर डिसिप्लिन टुवर्ड्स योर एक्टिविटीज, you will become more organized as a result of effective management. It will boost an individual's morale and make you more confident. Individuals who stick to time plan are the ones who realize their goals, objectives within the shortest possible time span. Better time management helps in better planning and eventually better forecasting. And research also says that individuals who accomplish tasks on time are less prone to stress and anxiety. I think this is all we have discussed. And finally, the advantages of staying ahead, you enjoy your work more. जब आपको लगता है ना मेरी एक एक्टिविटी भी पूरी हो गई टाइम पे, दूसरी भी हो गई, you are more enthusiastic to do start with the third activity also. And by this you learn more. अगर आपने अपना एक्स्ट्रा टाइम रखा है by for reading books or maybe looking on the computers या नेट पे कुछ और सर्च करना है, if you have time only then you will be able to devote some time, you will learn more. You will not be stressed out, you will get time to relax, and your grades, your appraisals will be more, and your overall work experience will be more fulfilling. If you do not manage your time, I think the situation will become this. Always stretching out yourself that you are not able to do, you will overload yourself. इस तरह से ही hips लग जाएंगे. So I think these visuals say a lot about this. So finally, if you realize the value of time, I think these are the statements you will read. I think it has a lot of meaning. To realize the value of 1 year, ask a student who failed a grade. To realize the value of 1 month, ask a mother who gave birth to a premature baby. To realize the value of 1 week, ask the editor of a weekly newspaper. To realize the value of 1 hour, ask those lovers who are waiting to meet. To realize the value of 1 minute, ask a person who missed the train. To realize the value of 1 second, ask a person who just avoided an accident. To realize the value of 1 millisecond, millisecond की भी बहुत value है, ask the person who won a silver medal in Olympics. So this is how the importance of time. But हम उतने अभी भी conscious नहीं है. I'm sorry to say, हमारे country का अभी भी जो है उतनी consciousness about the time नहीं है. International level पे भी अभी भी आता है कि it is हम आपस में बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, फंक्शन 9 बजे है, कोई बात नहीं, 9:30 तक तो पहुंच ही जाएंगे. तो वो हमारी एक हैबिट बन चुकी है जिसको कि हमें ब्रेक करने की जरूरत है. So finally, friends, manage your time well and keep smiling. This is all what I wanted to share with you. If you have any observation, any comment to make or any question. Thanks, ma'am. Extraordinary session. Thank you so much. Thanks, ma'am. Thank you, Hardik ji.